Hello student, Standard 9th Social Science, Chapter number 13, India, Location, Geological Structure and Physiography. So location, how can we identify that where is the India in the world map? Geological structure means that internal layer of the earth. This is the part of geological structure. And the physiography means external surface of the earth. So we will be studying of the internal layer of the earth and the external layer of the earth in details. So let's start at this chapter. First topic is that India is a place of cultural confluence. So let's study that. What is the meaning of cultural confluence? So that इंडिया होल्ड्स ए यूनिक पोजीशन अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में इंडिया का यूनिक लोकेशन है. एंड इंडिया हैज़ अ country having largest democracy and its culture is one of the oldest. The democracy of India is very large compared to the other countries, and our culture is very oldest because it has the largest democracy, because the coordinating attitude of our culture has not discarded any religion, race or people, but they accepted them wholeheartedly. We have accepted all the people who came from out of India without kind of religion, race, gender, caste, creed, etc. So that we can say that impartiality towards all religion, people and races is a peculiar characteristic of India, because we have accept all the peoples who came from other countries without any kind of discrimination, so that India has become a cultural confluence. Cultural confluence means that there are lots of diversities we can see in India. There is in the difference in the languages, there is a various kind of cultural, there is a various kind of festival celebration, etc. we can see in the different way. And all these peoples came from out of the countries has contributed immensely towards the development and progress of the Indian culture. जो भी पीपल बाहर से इंडिया में आए हैं उन सभी ने हमारे इंडिया के कल्चर को डेवलप करने की पूरी कोशिश की गई है. ठीक है. सो लेट्स study about that some of the topic that is very important for the further studies. So that Indian culture is very oldest and welcome all the peoples who came from out of India and never discriminated any peoples based on the religion, race, caste, gender, etc. And we have accepted all the peoples. Now it is very important to understand the latitudes and longitudes. So first of all, that what is the meaning of latitudes? Imaginary horizontal lines on the globe of the earth drawn from north to south. जो इमेजिन कर सकते हैं लाइन वो एक्चुअली में नहीं है, सो उसको बोला जाता है लैटिट्यूड्स, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द अर्थ. एंड द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स ऑन द ग्लोब ऑफ द अर्थ ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज नोन एज द लॉन्जिट्यूड्स. लॉन्जिट्यूड इसे बोला जाता है कि जो ग्लोब के ऊपर इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स हैं इसको बोला जाता है लॉन्जिट्यूड्स. देखो इसको इसके हम देख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए. सो दिस इज द ग्लोब ऑफ globe, so that this is actually the earth is divided into two parts by equator at 0 degree Celsius. The upper part of the earth is known as the northern hemisphere and the lower part of the earth is known as the southern hemisphere. So northern hemisphere is also divided into two parts by a tropic of Cancer that is passes approximately 23.5 degrees Celsius, and in the southern part tropic of Capricorn is also passed at 23.5 degrees Celsius southern part, and the upper part of the earth, this one is known as the North Pole and the southern part is known as the South Pole. Now Indian location, exactly location of India is ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिस मिडल ऑफ द इंडिया. अगर हमारा इंडिया का देखा जाए तो इंडिया के मिडल में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. ठीक है. सो डेट दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिया. हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये मैं एरो देख रहे हो वहाँ पर पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है और एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ पार्ट में हमारा इंडिया है. कहाँ पर है? हमारा साउथ पार्ट में
इंडिया है, ठीक है। सो दैट वी कैन से दैट इंडिया इज प्लेस्ड इन द साउदर्न ऑफ एशिया and northern of the hemisphere of the earth, right? Now you can see that green color of the vertical line is the longitudes and the horizontal line you can see in the red color, this is known as the latitudes. So longitude and latitudes के मदद से हम जान सकते हैं कि एक्चुअली हमारा इंडिया का लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, तो हम नॉर्थ लिखेंगे, अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में तो साउथ लिखेंगे, अगर इस पार्ट में देखेंगे तो इस इतने पार्ट में, ठीक है, तो वो हमारे ईस्ट जोन में आता है। अगर इस पार्ट को हम देखेंगे, दिस इज द मिडल लाइन, मिडल लाइन से अगर वेस्ट पार्ट में आता है तो इसको हम वेस्ट लिखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट so that actually you can understand that where is the place of India in the world map. Now you can see that latitudinal extent of India is 8.4 degree north to 37.6 degree north latitudes. Latitudes means horizontal line, and longitudinal extent of India is 68.7 degree east to 97.25 degree east longitudes. यहाँ पर जो हम देख रहे हैं लेटिट्यूडनल मीन्स की जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, ठीक है, वो नॉर्थ के अंदर है, और जो हम देख रहे हैं कि हमारा जो वर्टिकल लाइन है वो ईस्ट में है, ठीक है। तो इस मैप के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पर इस के जरिए कि यहाँ पर अगर इस वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल लाइन से अगर हम इस साइड में देखेंगे तो वो ईस्ट आएगा, और इस साइड में हम देखेंगे तो वो वेस्ट कंसीडर किया गया है, और इक्वेटर के ऊपर की जो लाइन कंसीडर करेंगे हम तो वो लोकेशन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इक्वेटर के नीचे का जो पोर्शन होगा वो होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इस तरह से हम ये जो लाइन देख रहे हो रेड, ग्रीन और रेड कलर की, ये दोनों के जरिए हम हमारा इंडिया का जो लोकेशन है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू कैन सी दैट इन दिस मैप वेयर इज इंडिया। इस ग्लोब में आप देख सकते हो कि हमारा इंडिया का लोकेशन कहाँ पर है, और हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ। सो दैट यू कैन सी दैट देयर इज एशिया, अफ्रीका, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा जो ये ग्रीन कलर देख रहा है, दिस इज रिप्रेजेंट द एशियन कंटिनेंट, एंड प्लेस ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। ये एशिया के साउथ पार्ट में है। अगर अर्थ के ऊपर बताया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर की ऊपर की लाइन में है, इसीलिए उसको हम बोलेंगे कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्लेस्ड है, ठीक है। तो इस बात को प्रॉपरली याद रखना है। लेट्स स्टडी अबाउट इट इन डिटेल। जियोग्राफिकली इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो इक्वेटर के ऊपर के पार्ट में, इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। इट एक्सटेंड अप टू द साउदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, जो एशिया के साउथ पार्ट में है, ठीक है। जो एक्चुअली टॉपिक ऑफ कैंसर इज पास इज अप्रोक्सीमेटली मिडल ऑफ द इंडिया, जो टॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया के मिडल में से पास होता है। द लार्ज प्लेन्स एंड द हिमालयन माउंटेन सिस्टम आर लोकेटेड इन दिस पार्ट, और इस पार्ट में अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडिया टू लेकर ईस्ट इंडिया में पूरा जो हिमालयन माउंटेन्स हम देख सकते हैं, ठीक है। सो द एरिया टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैज अ ट्रायंगुलर शेप एंड टेपर्स टुवर्ड्स द साउथ। अगर हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, वो इन्वर्टेड ट्रायंगल में आप देख सकते हो, ठीक है, कि जो नीचे की साइड में हम जाते हैं साउथ पार्ट में लास्ट मोस्ट पॉइंट पर, तो वहाँ पर वो नैरो वे दिख सकता है आपको, ठीक है। जो इस इंडिया के मैप में भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जिस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से ये ट्रायंगल बनता है, ठीक है। सो दिस इज द ट्रायंगुलर शेप, ओके। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दैट इन द नेक्स्ट पॉइंट is that the latitudinal as well as longitudinal extent of India are almost equal. So we can say that the length and width of the India is approximately equal, about 30 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे आप तो 30 डिग्री सेल्सियस पर वो हमारा इंडिया का लोकेशन है। लेट्स स्टडी अबाउट दैट। द एक्चुअली द लेंथ बिटवीन कश्मीर टू कन्याकुमारी मीन्स नॉर्थ टू साउथ पार्ट इज अप्रोक्सीमेटली 3214 kilometer,
and from Gujarat to Arunachal Pradesh, means from west to east part is 2933 kilometers, and we can see there is a difference of 2 hours in the local times between the two extreme places, starting from Gujarat in the west up to Arunachal Pradesh in the east, due to the longitudinal difference. अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है, ड्यू टू द लॉन्जिट्यूडिनल डिफरेंस की वजह से, कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है, हमारा ईस्ट का लास्ट पॉइंट है यानी अरुणाचल प्रदेश है, सो दैट वी कैन सी दैट सनराइज विल बी प्रॉपरली, वी कैन सी दैट, एंड सनसेट वी कैन सी इन द गुजरात, बिकॉज गुजरात इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द वेस्ट डायरेक्शन. व्हेन इट इज सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश, इट इज स्टिल नाइट टाइम इन गुजरात. जब अरुणाचल प्रदेश में सनराइज हो चुका होता है तो 2 घंटे का डिफरेंस होता है, और इसीलिए हमें गुजरात में नाइट देखने को मिल सकती है. द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड में. अगर हम देखेंगे तो दिस 82.30 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया. इंडिया के मिडल पॉइंट में से जो लाइन पास होती है वो 82.30 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पर आती है, ठीक है, जिस लाइन को भी हम नेक्स्ट मैप में देखेंगे. दिस लाइन लॉन्जिट्यूड पासिस थ्रू 5 स्टेट्स, जो 5 स्टेट में से पास होती है. दिस नेम ऑफ द स्टेट इज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश. नाउ इन दिस मैप यू कैन सी दैट दिस इज द नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, so that you can see here the length of India from north to south is 3214 kilometers, and west to east distance is 2933 kilometers. This is the Indian Standard Time. This line is passes through the 5 states. You can see in this map. This is the line, जिसे IST भी बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इसके इस लाइन के जरिए हमारा इंडिया का टाइम डिसाइड होता है, ठीक है, यहाँ पर आप साफ देख सकते हो, ठीक है. लेट्स स्टडी मोर अबाउट दैट. टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर. हमारे इंडिया का टोटल जो एरिया है वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का है. अगर वी कंसीडर इट एरिया वाइज रैंक, देन अवर इंडिया इज ऑन द 7th रैंक. एरिया वाइज कंसीडर किया जाए तो हमारा 7th रैंक आता है. एंड इन द पॉपुलेशन वी आर इन द 2nd रैंक आफ्टर चाइना. चाइना के बाद हमारा पॉपुलेशन में 2nd रैंक आता है, बट अगर देखा जाए एरिया वाइज तो हमारा 7th रैंक आता है. सो दिस 6 कंट्रीज लार्जर देन इंडियन एरिया, लाइक रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया. दिस का जो डिस्टेंस आप एरिया देखेंगे तो हमारे कंट्री के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है. ओके, नाउ द लैंड ऑफ इंडिया लाइज इन द साउथ एशिया. पूरा हम पार्ट देखेंगे तो हमारा एशिया के साउथ पार्ट में आता है. सो यू कैन सी हियर डेट ये जो पूरा पार्ट है हमारा एशिया का है, ठीक है. इस पार्ट में एशिया के हम साउथ पार्ट में यानी कि लास्ट पॉइंट में है, ठीक है. सो इसीलिए उसको बोला जाता है साउदर्न एशिया. That's why communicating with Tibet and China is possible only through passes located at high altitude. हम देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया से लेकर ईस्ट इंडिया तक पूरी हम माउंटेन रेंजेस आर प्लेस्ड देयर, so that if we want to communicate with China and Tibet, then we must have to go at the high altitude. हाईएस्ट हाइट पर अगर हम जाएंगे पहाड़ को क्रॉस करके तभी हम उससे बात कर सकते हैं. दिस इज पॉसिबल. बे ऑफ बंगाल लाइज टू द ईस्ट, अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड इंडियन ओशियन टू द साउथ ऑफ पेनिसुलर इंडिया. पेनिसुलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमारा इंडिया का साउथर्न पार्ट है इसकी तीनों साइड में पानी है, ओशियन है. वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशियन है, और ईस्ट में देखेंगे तो वहाँ पर वो बे ऑफ बंगाल है. इसीलिए उसको बोला जाता है कि पेनिनसुलर. इंडिया हैज एक्सेप्टेड ऑल कल्चरल एलिमेंट्स अराइविंग फ्रॉम आउटसाइड. इंडिया के बाहर से आए हुए हर एक पीपल्स को हमने एक्सेप्ट किया है, एंड दीज हैव मर्ज इनटू इंडियन सोसाइटी. और ये सब हमारे इंडियन कल्चर को साथ मिक्स हो गए. इसीलिए वी कैन सी दैट यूनिटी इन द डाइवर्सिटी.
आप इस मैप में देख सकते हो अदर कंट्रीज भी बहुत सारे रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप साफ देख सकते हो यहाँ पर। और ये लास्ट पैराग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी भी है। इंडिया होल्ड्स अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखा जाए तो हमारा जो इंडिया है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्यों है? वाई दिस इज द वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन दिस अर्थ। इंडिया इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आप समझ रहे हो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्यों कहा जाता है, जो मैंने समझाया था आगे। ओशियंस हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन डेवलपिंग म्यूचुअल रिलेशंस इन द एंशियंट टाइम्स। अगर आप इस पार्ट में देखेंगे इस मैप में तो यहाँ पर बहुत सारे कंट्री दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बट इस सारे कंट्री में सिर्फ इंडिया का लोकेशन स्ट्रेटेजिक क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सारे कंट्री के जो ओशियन कोस्ट लाइन देखी जाए तो बहुत छोटी है कंपेयर टू इंडिया। और इंडिया की अगर आप बाउंड्री देखेंगे तो यहाँ से लेकर ये सारी जो बाउंड्री है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारी जो बाउंड्री है वो सी कोस्ट है, ठीक है। और इसीलिए बहुत सारे पोर्ट डेवलप हो चुके हैं और पोर्ट के जरिए सी रूट अच्छे से डेवलप हो सकता है। सो डैट वी कैन से डैट इंडिया इज प्लेस्ड एट द स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्री वो सबसे बड़ी है, ठीक है। और इसीलिए इस बड़ी बाउंड्री के कारण इसके जो पार्ट में जो ओशियन आता है उसको इंडियन ओशियन बोला जाता है ड्यू टू इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री, राइट। नाउ लोकेशन ऑफ इंडिया अक्रॉस द इंटरनेशनल वाटरवेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. Waterway is most important part of this location because Britishers came from Europe to India via waterways, right? जो सी रूट के जरिए आया था वो वास्को दा गामा ने 1498 में न्यू सी रूट फाइंड आउट किया गया था, ठीक है। With the opening of Suez Canal in 1869, the distance between India and Europe has reduced by 7,000 kilometers. In this map you can see that this is the way. यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो रास्ता दिख रहा है, ठीक है, ये सुएज कैनाल है. दिस इज द यूरोपियन कंट्रीज, राइट. सो पहले जो आते थे ब्रिटिशर्स वो यहाँ से पूरा राउंड लगाकर यहाँ पर केप ऑफ गुड होप नाम की जो प्लेस है साउथ अफ्रीका की, वहाँ से लेकर वो इंडिया में इस तरह से आते थे. बट आफ्टर द सर्चिंग फाइंड आउट द सुएज कैनाल दे केम फ्रॉम दिस वे. वो इस रास्ते से आने लगे. सो इसके जरिए हमारा जो व्यापार है वो बहुत इंक्रीज हो गया था. बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप टू इंडिया इज डिक्रीज अप्रॉक्सीमेटली 7,000 किलोमीटर. इस 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया, इसीलिए जो हमारा व्यापार है, बिजनेस है, वो अच्छी तरह से डेवलप हो सका. नाउ गुड्स एंड आइडियाज आर बीइंग एक्सचेंज सिंस एशियन टाइम्स. आजकल की बातें नहीं है, बहुत पुराने टाइम से हमारा जो बिजनेस है उनके साथ के रिलेशनशिप है बहुत अच्छी से चल रही है. ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, कंसेप्ट ऑफ उपनिषद, स्टोरी ऑफ रामायण एंड पंचतंत्र, थेरापेटिक मेथड, इंडियन न्यूमेरिकल फिगर्स एंड डेसिमल सिस्टम एटसेट्रा कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. और इसीलिए जो हमारे आइडियाज़ हैं, आइडियल्स हैं, वो एक्सचेंज होते रहे. इसीलिए जो हमारा ये उपनिषद का कंसेप्ट है, रामायण है, पंचतंत्र है, थेरापेटिक मेथड है, सब इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो पाया. इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट लोकेशन इन साउथ एशिया. और साउथ एशिया का जो इंडिया का लोकेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आज के वक्त में देखा जाए देयर आर 29 स्टेट्स एंड नेशनल कैपिटल जो दिल्ली कंसीडर किया जाता है एंड 6 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. यहाँ पर ये है, ठीक है. बट आफ्टर द रिमूविंग ऑफ 370 आर्टिकल्स ये 28 स्टेट हो गए हैं. और यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज 2 इंक्रीज हो गई क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ठीक है. सो आज करंट अपडेट के हिसाब से 28 स्टेट्स, 1 नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया. आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, बहुत यूजफुल भी रहा होगा. थैंक यू.